इवनिंग, नमस्कार, आदाब, ख़वातीन हज़रात। आज की इस शाम में मैं नाज़िया कमाल आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अभी हाल ही में नेशनल म्यूज़ियम में चित्रम वस्त्रम एग्जीबिशन लगी थी, जिसको पद्मश्री और पद्म भूषण प्रोफेसर BN गोस्वामी ने इब्तिदा यानी इनॉग्रेट किया था। इस एग्जीबिशन को हर उम्र के विजिटर ने खूब सराहा था। तो चलिए उस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हैं आज के इस बुक रिलीज इवेंट से। अगर किसी वजह से यहाँ बैठे आप किसी ने ये एग्जीबिशन मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्जीबिशन का वर्चुअल टूर बन चुका है, जिसे आप कभी भी कहीं भी बैठकर देख सकते हैं और जो नेशनल म्यूज़ियम की वेबसाइट पर भी अपलोड होने वाला है। तो आपके पेशे खिदमत है स्क्रीनिंग ऑफ चित्रम वस्त्रम वर्चुअल टूर। बहुत उम्दा। तो कैसा लगा आप लोग को ये वर्चुअल टूर? तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम है। शुक्रिया। एक ऑथर के लिए इससे सबसे बड़ी खुशी का वक्त और कोई नहीं होता जिस दिन उसकी किताब का इजरा होता है, यानी जिस दिन उसकी इतनी मेहनत मशक्कत रंग लाती है। और इसी लम्हे का गवाह बनने आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो और वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं इस किताब की ऑथर और एग्जीबिशन की क्यूरेटर डॉक्टर पवन जैन से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और अपना क्यूरेटोरियल रिमार्क पेश करें।
think I know everybody in the audience. So very familiar, so many familiar faces here. Thank you all for being here. Respected Ma'am Lily Pandey, DG National Museum, esteemed guests and colleagues. Thank you for coming to help launch my latest book, Chitram Vastram, a journey of textiles and sartorial styles through Jain manuscript painting. It has been purely a labor of love that has been the culmination of work across 10 years. The very nature of the subject was visual that it proved ideal for an exhibition. When I wanted to put forward an argument, the visuals said it all. The most fascinating part of this journey has been interacting with and learning from people of diverse disciplines. They came from religious backgrounds like the Jain acharyas, scholars from Granth Bhandars and institutions, the artistic and art historian community, and of course, various textile craftspersons, collectors, and lovers. Incidentally, I belong to all the three groups. I am a trained art historian, and by profession, I am a textile entrepreneur, and I became a Jain through marriage. And the gleam in the eyes of my family and extended family was unmistakable when they learnt about this project of mine. These aspects proved to be great enablers for bringing out the nuances from all three areas and highlighting them respectively. Along with my team, we were able to showcase the best of the paintings and textiles in the form of the exhibition at National Museum, followed now by the publication of this very special book. Establishing the relationship between the various motifs, textiles, and techniques in Jain manuscript paintings has been an intellectually stimulating and artistically rewarding journey. This book has sublime and some never before published images of both rare Jain paintings and breathtaking textiles, along with detailed descriptions and discussions on the subject. It can be read in one sitting, or one can leisurely go through the discussions and visuals, pause, contemplate whatever captures your attention or interest, and then move on. Two of my favorites from the book are firstly the scroll made by the Mughal painter for Jain patrons, the Jahangir's Farman. There he bans animal slaughter for the days of the Paryushan, and the other is the Patan Patola, the elephant panel that you just saw on the screen, exported to Sulawesi, Indonesia in the 18th century from Gujarat, narrating a processional scene of taking the Siddhahema grammar on King's elephant Shrikar. This was actually inspired from 12th century historic episode and 13th century palm leaf folio, illustrating the same theme. It does not end here. After a gap of almost 150 years, the master weavers of Patan recreated the same panel, calling it Shrikar Bhat, which was actually in the 12th century the name of the elephant. Yep. So I hope you all will enjoy reading it as much as I have enjoyed curating the exhibition and writing the book. Many, many thanks are due to Professor B.N. Goswami for agreeing to be the chief guest at Chitram Vastram exhibition and for being the keynote speaker at this symposium. Director General Lily Pandey for believing in me, my mentor Satyavrat Tripathi, former curator of manuscripts at the National Museum, for showing me the way. Thank you, sir. The National Museum team, of course, for putting up with my endless phone calls, seeing my face every day continuously for 3 months, and my continuous nagging at all times, but braving it with wide smile. Can we all hear it for the National Museum staff, guys? Thank you everybody. I would love to take everybody's name, but I have Rige's, eyes staring at me that I have to finish in time. Yeah. So please consider that I have announced each and everybody's name present here. Okay. My thanks are due to the contributors to the exhibition, scholars who participated so very enthusiastically in the symposium, my friends and family.
Thanks to Gunjan Jain for coming on board as assistant curator. Thank you, Gunjan. Nisha Susan for agreeing to be the consultant editor, and Garima Jain for helping me with the technicality of the virtual tour you just saw. And Gaurav Jain for his inputs in editing and designing of the book. I wish we had made more children. They come so handy at these times. Talking about children, my partner in crime, my husband Yash Jain, has been a great guiding force and a co-traveler in this long journey. This large team behind me has been instrumental in assuring the aesthetic rigor of the exhibition and now the book. Finally, I'd like to, of course, thank my students. Each one of them has played a very important role towards realizing this dream. Thank you. Thank you once again, all of you. Talking about interdiscipline, cross-cultural inclusion, it does not end with the exhibition or the book. We have amongst us a very dear friend, highly acclaimed and celebrated Dastangoi artist, Syed Sahil Aga, who's going to narrate stories from Jain texts and some textile narratives also, which is the very theme of the book and the exhibition. I think it can't get better than this. So, sit back and relax rest of the evening. Thank you. शुक्रिया पवन जी। बेशक जैसे हमने चित्रम वस्त्रम एग्जीबिशन पसंद किया था, वैसे ही आपकी किताब को भी उतना ही प्यार मिलेगा। तो अब मैं बहुत ही एहतराम के साथ आपके सामने उन शख्सियत को बुलाना चाहूँगी जिनकी हौसला अफजाई और हिमायत से ये इवेंट मुमकिन हो सका, हमारी डायरेक्टर जनरल लिली पांड्या मैम। मैं लिली मैम को दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और अपने स्पेशल एड्रेस से हम सबको खिताब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Namaste everyone and many greetings to all of you. Every time I come to National Museum, I get something new to learn, and today I learned from the template set by Dr. Pawan Jain, who has now become in this journey a friend, and she said that when she just says hello, she means all of us, everybody without taking names. So namaste and hello to all of you. It gives me immense pleasure to be present here with all of you today for the launch of our brand new publication titled Chitram Vastram, authored by Dr. Pawan Jain. So please let's listen for Dr. Pawan Jain. Please give it up for her. This publication is a part of the exemplary exhibition Chitram Vastram, Journey of Textiles and Sartorial Styles through Jain Manuscript Paintings, which was curated by her team and my team, National Museum. It is a constant endeavor of National Museum to provide a highly interactive space catering to the needs of multiple audience. We as a team strive to create avenues through which our diverse and extensive collection can be brought to the public domain for all of us to experience, appreciate, and learn about our history, art, and culture. We have been hosting visitors from across the globe since our very inception. As an extension of our facilities offered to our visitors, more specifically to academicians, researchers, and subject specialists, it is our conscious effort to bring out quality publications based on the National Museum's diverse collection. The museum has a dedicated publication department which is consistently working towards furthering the research outcomes and latest developments on the varied topics of museums and museology. I congratulate National Museum's publication and exhibition team for having conceptualized this publication and the spectacular Chitram Vastram exhibition, which captures the richness of the Jain art and brought to the fore some of the rare manuscripts from the National Museum's reserve collection. This book,
presents an opportunity to once again experience the splendor of textiles depicted in the Jain manuscript paintings and their relevance to the current textile scenario. I would like to extend my warm welcome to Mr. Syed Sahil Aga, a renowned Dastangoi, who would be taking us on an immersive journey, narrating episodes from the Jain texts and textiles through the traditional art of storytelling, Dastangoi. I am grateful to you for your efforts in continuing and enriching this living heritage, this living tradition, Mr. Aga. Here I would like to reiterate the role of our communities and groups and individuals in safeguarding the authenticity of our living heritage through continuous intergenerational transmission of the cultural heritage, thereby enriching our cultural diversity and human creativity. Being the true custodians of our heritage, their underpinning philosophy is holistic, based on ecocentric and inclusive lifestyle, befitting the real essence of Vasudhaiv Kutumbakam and the ideals of culture for life, that is, lifestyle for environment, on which the Culture Working Group of India's G20 presidency is based. I look after the G20 vertical in the Ministry of Culture, and therefore please allow me to shine some light on the Culture Working Group, the ideals of Culture Working Group of India's G20 presidency. For a context, the World Conference on Culture held in Mexico City in 2022 concluded with an iconic declaration recognizing culture as a global public good. In fact, the Mundiakult Declaration proposed culture to be integrated as a specific goal in its own right in the development of the Sustainable Development Goal Agenda beyond 2030. The essence of this paradigm shift in the global discourse is being strongly echoed through the ongoing deliberations of our Culture Working Group on the G20 forum. The four priority areas of the Culture Working Group are protection and restitution of cultural property, harnessing living heritage for a sustainable future, promotion of cultural and creative industries and creative economy, and leveraging digital technologies for the protection and promotion of culture. I would also like to invite you to participate in the upcoming thematic webinar on the first priority area, protection and restitution of cultural property, which is being organized in association with UNESCO, our knowledge partner for Culture Working Group, on the 28th of March. This will be followed by a series of webinars on other priority areas. You can also keep a close tab on our social media handles, ministries' social media handles. They are also repeated on the National Museum handle to follow our G20 Culture Working Group journey. In the end, I urge all of you to visit the ongoing exhibitions with your friends and families. We have two going on right now. One which is a part of an Indo-Danish collaboration. So it brings out the silver collections from Denmark as well as from our own reserve collection. And the other one on Indo-Siam in partnership with Thailand, Indo-Siam Connect. So please visit these ongoing exhibitions with your friends and families and become our museum's ambassadors to help us reach out to more and more people, more enthusiasts and patrons and lovers of history and museums. Well, as I look forward to this cultural evening, I also hope and wish that inspires each one of us present here today to perceive museums as a beautiful book of stories telling tales that seamlessly bridge our past, present, and future. Once again, I welcome and thank all the dignitaries and all present here today, as well as my colleagues who are all with me today, present here in this auditorium. So I hope you enjoy the Dastangoi performance, and I hope you enjoy going through the book. And many, many, many congratulations to Dr. Pavan Jain
for giving us this beautiful treat, first in the form of the exhibition that was inaugurated here in National Museum in the month of December 2022, and now in the form of this publication. So many congratulations, Dr. Jain. I wish all of you a great evening. Thank you. Thank you so much, ma'am. मैम, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप स्टेज पर ही बनी रहें और जिस पल के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उसे अपने मुबारक हाथों से दस्तयाब करें। इसके साथ ही मैं दो और ख़ास लोग जिनका आज के इस बुक रिलीज़ में बहुत अहम किरदार रहा है उनको बुलाना चाहूँगी। मैं दरख्वास्त करूँगी इस बुक की ऑथर डॉक्टर पवन जैन से और हमारे पब्लिकेशन इंचार्ज डॉक्टर योगेश मल्लिनाथपुर से कि वो स्टेज पे आएँ, और मिस जवेरिया से गुजारिश करूँगी कि वो बुक की कॉपी डॉक्टर योगेश को दे दें। डॉक्टर योगेश, आप बुक की एक एक कॉपी दीजिए मैम और पवन जैन जी को दे दें। तालियों की गड़गड़ाहट बहुत ही कम है, प्लीज जोरदार तालियों से। यस मैम। थैंक यू। आज की शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं दास्तानगो सैयद साहिल आगा। मैं एक बार फिर से लिली मैम से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे आज के फनकार सैयद साहिल आगा को शॉल पहनाकर और गुलदस्ता देकर खैर मकदम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बस कुछ ही पलों में सैयद साहिल आगा अपनी दास्तान गोई पेश करेंगे, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए स्टेज सेटअप करने के लिए। जब दिल के किसी कोने में जज्बात अंगड़ाई लेते हैं और लफ्जों के सहारे लबों पर आने की आरज़ू करते हैं, तो ताजमहल की चांदनी रात में देखने सा खूबसूरत एहसास दास्तान गोई दिलाता है। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 13वीं सदी से चला आ रहा है, लेकिन 19वीं सदी में ये हिंदुस्तान को अपनी आगोश में ढकता है। दास्तान गोई एक ऐसा फन है जिसमें किसी भी दास्तान को इस अंदाज में पेश किया जाता है जैसे किसी तस्वीर में रंग भर दिए जाएं। बचपन से आप सब ने अपनी माँ से परियों की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। जी हाँ, बस कुछ ऐसा ही जायका दास्तान गोई का भी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी पेशकश पेश करने आ रहे हैं सैयद साहिल आगा, जो दास्तान गोई का एहतराम अपनी माँ की तरह करते हैं। साहिल आगा आज की शाम को अपने फन से और खूबसूरत बना देंगे और चित्रम वस्त्रम एग्जीबिशन से कुछ एक पहलू लेकर दास्तान गोई पेश करेंगे जो उन्होंने खास आज के इवेंट के लिए तैयार किया है। पेशकश पेश करने से पहले मैं आप सबको साहिल आगा से रूबरू कराना चाहूँगी। सैयद साहिल आगा एक मशहूर दास्तान गो हैं।
आप राइटर और ऑथर भी हैं। आपकी कई बड़ी कामयाबियों में सबसे अहम आपकी किताब दास्ताने हिंद है। आपकी बेहद पसंदीदा दास्तान गोई में से एक विक्रम बेताल, तुगलकनामा, दास्ताने अमीर खुसरो, दास्ताने महात्मा, दास्ताने मीर शामिल हैं। आपने दास्तान गोई में एकदम नया अंदाज म्यूजिकल दास्तान गोई को दिया, जिसमें दास्तान गोई के साथ इंडियन ओपेरा और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक साथ पेश किया जाता है। आपने गालिब उमराव बेगम के लिए कहानी और डायलॉग भी लिखे, जो डीडी उर्दू पर टेलीकास्ट हो चुकी है। आपकी दास्तान गोई पर 2 फिल्में बन चुकी हैं, परी खाना और मायाजाल। जौनपुरी की एक पूरी सीरीज टेलीकास्ट भी की जा चुकी है। कुछ चुनिंदा सितारों ने आपके इस अंदाज को कुछ यूं सराहा, जैसे जावेद अख्तर ने कहा, साहिल आगा दास्तान गोई के जादूगर ही। शबाना आजमी कहती हैं, ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। शुएब अख्तर ने कहा, ही इज़ अनबीटेबल, ये कमाल के हैं। आपने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए। तो और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं साहिल साहब से दरख्वास्त करूँगी कि अपनी पेशकश पेश करें, क्योंकि साहिल साहब भी हम सब से यही कहना चाहते हैं, मेरी ज़ुबान से मेरी दास्तान सुनो तो सही, मेरी ज़ुबान से मेरी दास्तान सुनो तो सही, यकीन करो ना करो मगर सुनो तो सही। तो साहिल साहब पेशे खिदमत हैं। खातिनों हजरात, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो तशरीफ़ लाए। डायरेक्टर जनरल साहिबा का ख़ास शुक्रिया। अगर ये मौका वो हमें ना देती तो दास्तान गोई जो 13वीं सदी का फ़न है, हम उसको इस तरह आपके सामने पेश ना कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवन जैन साहिबा का, जिन्होंने ये खूबसूरत किताब लिखी और हमें ये मौका दिया कि इतिहास की उन दास्तानों को हम आपके सामने पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का तशरीफ़ लाने के लिए। कि दास्तान भूली हुई दास्तान, दास्तान जो कपड़े पे लिखी गई, दास्तान जो मखतूतात में सो गई, दास्तान जो पांडु लिपियों में न जाने कहाँ खो गई, दास्तान जो वक्त की गर्द में दादी नानियों की पुरानी शाल ओढ़े सो गई। ये दास्तान वहीं से बुन के और चुन के लाए हैं आपके लिए। ये दास्तानों से अगर गुजरो कई किरदार मिलते हैं, दास्तानों से अगर गुजरो कई किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी पे खड़े कुछ यार मिलते हैं, जिन्हें हम दिल का वीराना समझ के छोड़ आए, जिन्हें हम दिल का वीराना समझ के छोड़ आए, वहीं उजड़े हुए शहरों के आसार मिलते हैं। कि वहीं से दास्तान आपके लिए, आपकी पेशे खिदमत, कि दास्तान वो जो लिबास पे लिखी गई, कपड़ों पे लिखी गई, पांडु लिपियों में लिखी गई, मखतूतात पे कही गई। कि याद करें हिंदुस्तान के मशहूर और माहिर बुनकर जो कपड़ा बुनते तो यूं बुनते, मालूम देता कि जैसे आसमान से खुद वो ईश्वर उतर आया हो, उसने अपना वरदान दिया हो। ये कोई मजाक नहीं। आप सोचते होंगे दास्तान सुनाने वाले ऐसी बातें इधर उधर की करते हैं, मगर ये हकीकत है कि हिंदुस्तान जन्नत निशान के बुनकरों का बुना कपड़ा आज के इजिप्ट पहुंचा, यानी कि उस दौर के मिस्र तक, आज के इंडोनेशिया तक पहुंचा कि हिंदुस्तान के ताजिर हिंदुस्तान से कपड़ा लेते, इंडोनेशिया जाते, मिस्र जाते,
दुनिया भर में घूमते। ये कोई कमाल की बात नहीं। कमाल की बात तो अब आगे सुनिए हुजूर कि साहिबान, नाजरीन और हाजरीन, हुआ यूं कि इंडोनेशिया में हिंदुस्तान के बुने कपड़े जब देर वक्त बाद मिले, तब मालूम हुआ कि ये क्या राज है, ये क्या बात है। तो सुनिए वो क्या राज कि जो हिंदुस्तान से लेके गए कपड़ा और वहां फरोख्त किया, जब वहां के रहने वालों ने वैसा ही कपड़ा बुनना चाहा, छापना चाहा, तो छाप ना पाए, वो रंग दे ना पाए, वो अंदाज ला ना पाए। तो आखिर उन्होंने कहा कि ये इंसान का बुना नहीं, ये तो देवताओं का आशीर्वाद है जो हमारे पूर्वजों को वो दे के गए कि उन्होंने ये कपड़ा बुना, कि वो उस कपड़े को रखते अपनी इबादत गाहों में, खास वक्त पे निकाल आंखों से लगाते, उसे चूमते और कहते कि ये तो ईश्वर का वरदान है। देर वक्त गुजरा, जब हिंदुस्तान जन्नत निशान में डॉक्टर पवन जैन जैसे हिस्टोरियन आए, कपड़े की तारीख को चाहने और छानने और पटकने वाले आए, तो उन्होंने बुना उसमें से ये मोती, दुनिया को बतलाया कि वहां जो कपड़ा है वो हिंदुस्तान में बुना गया, गुजरात बुना गया, कि समुद्र किनारे बुना गया। मगर वो न माने। याद करें एक किस्सा, जब उस मुल्क का रहने वाला हिंदुस्तान जन्नत निशान आया, वो गुजरात आया, वो आसाम आया, उसने घूमा हिंदुस्तान और बुनकरों के साथ वक्त बिताया। तब एक हमारे देहाती सब बुनकर ने उससे कहा कि भैया तमाम लोग बड़े सीधे साधे, का हो अंग्रेज, पर ये ना जाने वो जो कपड़ा था वो हमारे बुजुर्गों ने सिया था और तुम वो समझते रहे कि वो ईश्वर का आशीर्वाद है। ना जी ना, बड़े सीधे लोग हो, तो वो ना समझे ये राज। ओ मैन, हम सीधा नहीं पॉलिशन करता, तुम लोग नहीं जानता, ये एक राज है, हम तुमको बताता है, तुम लोग समझेगा नहीं, फिर भी सुनाता है। तुमने संत कबीर का नाम तो सुना होगा, वो एक सूफी था, कवि था, बहुत अच्छी बातें करता था। ये संत कबीरदास जो जुलाहे के घर में रहे, जुलाहे के घर में वक्त गुजारा। जुलाहे वही कौम जो कपड़ा बुनती है। उनसे एक पंडे ने कहा, कबीरदास शाम को हमारे घर आना, कि कुटिया में बिछी जाजिम चांदनी की नाप ले जाना और ऐसे ही उम्दा जाजिम बुन के लाना। शाम हुई, कबीरा पहुंचे, जो दरवाजे के पट खोले, अंदर झांका, देखा हर तरफ किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें, मेज पे किताब, जमीन पे किताब, अलमारी में किताब, कुर्सी पे किताब, और एक कोने में बैठे पंडित जी भी पढ़ रहे हैं किताब। कबीरा ने देखा तो उस पंडित से कहा, ये क्या है कि हर पढ़ा लिखा इंसान उस दौर का जानता था कि कबीर अनपढ़ हैं, लेकिन ज्ञान की और ध्यान की ऐसी बात कहते हैं कि सामने वाले को लाजवाब कर देते हैं। इसलिए हर पढ़ा लिखा आदमी उनसे घबराता था, बचता था। तो पंडे ने भी बचने का रास्ता चुना। कबीरा ने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, कबीरा तुम नहीं समझोगे। कबीर ने कमरे में रखी एक एक किताब को घूर घूर के देखा
और वो किताब जल के खाक हो गई। आखिर उस पंडे के हाथ में जो किताब थी वो भी जल के खाक हो गई। न चिंगारी न धुआं, फकत राख ही राख। मैंने पूछा, कबीरा ये क्या है? तो कबीर ने कहा, तुम नहीं समझोगे, ये वो राज है। समझे? नहीं समझा तुम। हम तुमको और आसान करके बताता है। वो लोग जो तुम्हारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो अपने काम से प्रेम करते थे, वो इश्क करते थे कि उनका काम उनकी साधना था, सच्ची साधना। वो साधना जिस पे ईश्वर का आशीर्वाद इश्क करने वालों के साथ है, कि जो अपने काम से प्रेम करते हैं और ध्यान। ईश्वर के उस आशीर्वाद से जो कपड़ा बुना वही हमारे यहाँ है। यही तो हम भी कहते हैं कि वो ईश्वर का आशीर्वाद है। तब इस सीधे सच्चे मानस ने कहा, हाँ भैया तुम सही कहते हो, वो लोग बड़े अच्छे थे, अब हम उनके जैसे कहाँ, हमें कहाँ मिले ईश्वर का आशीर्वाद। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इश्क काम के और काम इश्क के आड़े आता रहा, तो आखिर तंग आके हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो भगवान का आशीर्वाद हिंदुस्तान के बुनकरों पे यूं ही नहीं रहा। कि सुने एक और किस्सा। मुगल बादशाहों के बादशाह औरंगजेब का। कि औरंगजेब को जब ये मालूम हुआ कि हिंदुस्तान जन्नत निशान में ऐसे आला बुनकर हैं कि वो ऐसा कपड़ा बुनते हैं कि हिंदुस्तान में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं, दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं, हिंदुस्तान के ऐसे बुनकर। तो औरंगजेब ने उन बुनकरों को बुलवाया। ये जो मैं आपको किस्से सुना रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है, ये हमारे ऐतिहासिक जो कपड़े मिले हैं या पांडुलिपियाँ हैं उनमें ये किस्से हैं, वहाँ से आपको सुना रहे हैं। इनका जायका लीजिए, ये बड़े ऐतिहासिक हैं। औरंगजेब ने बुनकरों को बुलवाया और कहा, हमें मालूम हुआ है तुम बड़ा उम्दा कपड़ा बुनते हो, जाओ खजाना लो हमारा और कपड़ा बुनो। लेकिन ठहरो, शर्त हम बताएंगे। कपड़ा ऐसा बुना हो कि निगाह उस पे टिकने ना पाए। कपड़ा ऐसा हो कि जो जिस्म पे हवा के गिलाफ की तरह मालूम दे। और कपड़ा ऐसा हो कि जिसे अकल देखे सोचे तो माऊफ हो जाए, अपने काबू में न रहे। जाओ बुनो कपड़ा, ले जाओ खजाना। बुनकर वहां से चले, देर अरसा गुजरा, दरबार में वापस ना लौटे। अब ये बात जब शहजादियों को मालूम चली कि एक ऐसा उम्दा कपड़ा बुना जा रहा है, कहीं बुनकर बुन रहे हैं, तो रुपये भिजवाए गए, पैगाम गए कि आखिर वो लिबास कब आएंगे सिल के। तो बुनकरों ने शहजादी के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 लिबास तैयार किए। शहजादी को नजराना भेजे
कि शहजादी ने भी एक के ऊपर एक और एक और एक और एक करके वो सातों लिबास एक साथ पहन डाले। क्यों? सुनिए दास्तान का अगला बंद। दरबार में पहुंचे, औरंगजेब बैठे और कहते हैं हमारे बुनकर आए हैं, खाली हाथ आए हैं। मालूम देता है जो पहली हमने दी थी इन्हें वो सुलझा ना पाए। बुनकर मुस्कुराए और कहा हुजूर, कपड़ा बुन लिबास सिल लाए हैं, अपनी आरामगाह में जाइए कि शहजादी उसे पहने हैं, जेब तन है। बादशाह उठे, अपने हरम में आए कि बैठे जो तो सामने से शहजादी आई, उसी लिबास को पहने, आदाब किया और एक तरफ बैठ गई। शहजादी को देखते ही बादशाह ने नजर फेर ली और कहा, ये कैसा लिबास पहना है आपने? सारे जिस्म की बनावट साफ नजर आती है, जाके इसे उतारिए। और बुनकर, ये क्या बुन के लाए हो तुम? तो हिंदुस्तान जन्नत निशान का बुनकर मन्ना मन्ना मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, आप शायद भूल गए, मगर हमें याद है। याद कीजिए अपने बोल, ऐसा लिबास हो कि निगाह टिकने ना पाए, कि 7 जिल्दों के बावजूद वो लिबास इस कदर हल्का कि जिस्म की बनावट साफ आया होती है। आपने कहा था कि यूं हो जैसे जिस्म पे हवा का गिलाफ। हुजूर, यही तो है झीनी झीनी वो चदरिया। आपने कहा था कि अकल देखे तो मायूस हो जाए, कुछ सोच ना पाए। हुजूर, आप भी वो वादा वो बात भूल गए कि बादशाह औरंगजेब बड़े खुश हुए कि हमारे बुनकर को इनाम दिया जाए और वो लिबास जाया ना किया जाए, तकसीम कर दिया जाए तमाम खादिमाओं में। और अगले दिन खादिमाएं उस लिबास को पहन हरम में घूम रही थी कि यूं थे माहिर बुनकर। यूं ना जानिए, और आपको किस्सा सुनाए माहिर बुनकरों का। कबीर, संत कबीर, कबीर दास। कबीर का जन्म उनकी मौत की तरह रहस्यमय है कि वो कमल के पत्तों पे मिले और जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनका बदन पत्ती पत्ती हो गया, फूल थी। लेकिन कबीर का जीवन स्पष्ट और साफ है, बिल्कुल शफाफ, कि प्रेम है, वो सच्चाई है। कबीर बचपन से ही जुलाहों के यहाँ रहे। जुलाहे जैसे कि कहा कपड़ा बुनने वालों के यहाँ। कबीर दास कपड़ा बुनते, राम नाम का ध्यान करते। एक रोज यूं हुआ, कपड़ा बुनते 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 कबीरा और धुनी को धुनते 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 कबीरा अपने ध्यान में लीन हो गए। कबीरा धुनी को धुनते हैं और राम का नाम लेते हैं। वो राम का नाम लेते लेते यूं ध्यान मगन हुए कि कपड़ा बुनना ही भूल गए। जब ये बात ऊपर वालों को मालूम दी तो आसमान से देव खुद उतर जमीन पे आए कि जो हमारा ध्यान करता है वो अगर अपना ही काम भूल गया तो जीविका कैसे करेगा। कि देव आए, कपड़ा बुना और कबीरा के सिरहाने रख गए। सुबह आँख खुली
कबीर दास ने देखा और दास को जाना, उस लिबास को ले बाजार में चले, देखा क्या उम्दा चदरिया है, आहा एकदम झीनी झीनी, और ऐसा कपड़ा तो बाजार में किसी के पास ना है। तो मैं जरा इसका मोल बढ़ के मांगू, जरा ज्यादा मांगू। इस सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होने को आई, बाजार में जो आता वो कबीरा के उस कपड़े का मोल न दे पाता। कबीरा परेशान, ये कैसी दुविधा, ये कैसा कोई, ये कैसा भगवान का आशीर्वाद है जो फल के ही नहीं देता। तो कबीरा परेशान बैठे हैं और इस बात में उलझे हैं कि यूं कहते हैं भविष्य की गर्भ में क्या है ये स्वयं ईश्वर ही जानता है। वही इस किस्से के गर्भ में है जो आप जानेंगे जरा लम्हे में कि शाम हुई, कबीरा बैठे हैं, साधुओं की एक टोली आई, कबीरा का ही भजन गाते थे। मुझको इतना दीजो प्रभु, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधो ना भूखा जाए। कबीरा साधो तेरे सामने है, दे दक्षिणा। कबीरा देते तो क्या देते, फकत वो चदरिया थी, सो लो उसको दे दी। वो चदरिया हाथों 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 हाथ होते 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 बादशाह के पास जा पहुंची। और कबीरा यहाँ परेशान बैठे हैं कि वो कैसा वरदान था जो खिला ही नहीं। बादशाह ने कहा, वाह क्या उम्दा लिबास है, ये किसने बुना, जरा पता करो, इसे बुला के लाओ, हम भी इससे ऐसे ही कपड़ा और बुनवाएंगे। देखो चदरिया, आहा कितनी झीनी झीनी है। पता किया गया, इधर उधर जासूस, दूत, संतरी और मंत्री दौड़ाए गए कि कबीरा बाजार में खड़े पाए गए। कबीरा कहते थे, कबीरा खड़ा बीच बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। कि बस कबीरा ने ये कहा कि ना बैर हम बैर, तो चलो उनको पकड़ के लाए, दरबार में बादशाह के सामने हाजिर किया। बादशाह ने कहा, कबीरा भाई हमारे राज्य में इतने बुनकर हैं, ये तो हम जानते भी नहीं थे। कबीरा तुम ये चदरिया जरा और बुनो, अपने साथ कुछ और कारीगर मिलाओ, बुनकर मिलाओ, ये लो अशरफियां ले जाओ, हम इस चदरिया को ओढ़ेंगे, हमारे दरबारी ओढ़ेंगे। कबीरा हमारी मलिकाएं ओढ़ेंगी, कनीजें ओढ़ेंगी, जाओ और बुन के लाओ, ले जाओ खजाना। कबीरा कबीरा ने वो रकम ली, वापस लौटे और जाना कि ईश्वर का वरदान यूं खिला। कपड़ा बुना, जब चंद रोज बीते तो उस कपड़े को ले बादशाह के सामने पहुंचे और कहा, हुजूर ये आपका हुक्म था, मैं कल पाया, मैं ये बुन के लाया हूं, आप स्वीकार करें। बादशाह ने देखा तो कहा, कबीरा हम जानते थे तुम बुन के लाओगे, अब सुनो आगे की बात, और खजाना ले जाओ। क्या उम्दा बुनते हो, मालूम देता है ईश्वर का वरदान है। कबीरा और बुनो कि इस कपड़े का हम व्यापार करेंगे, देश विदेश ये कपड़ा जाएगा, और फिर इतना धन इतना धन इतना धन आएगा कि हमारा राज्य सबसे धनवान हो जाएगा। कबीरा जाओ बुनो। कबीर दास ने कहा, इसे इतिहासकारों ने लिखा, बादशाह सलामत
कि आपका हुक्म था मैं फल पाऊं, मगर ये कबीरा धुनी धुनने तो न आया। ये कबीरा तो आया है टूटे दिलों के तारों को जोड़ने के लिए। ये कबीरा तो आया है समाज में बिखरे लोग उनके ख्यालात को एक धागे में पिरोने के लिए। हुजूर, मैं तो एक धुनी हूँ, मैं इस रुई को क्या धुनूं कि मैं तो दिल के बिनौले बीनने इस धरती पे आया हूँ। ये धुनी रे धुनी तुझे किसकी धुन, धुनी रे धुनी, धुनी रे धुनी तुझे किसकी धुन, पराई धुनी के पाप न बुन, तेरी रुई में चार बिनौले सबसे पहले उनको चुन। हुजूर, मैं समाज कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। कबीरा, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, आहा, क्या वाणी है, जायका ही आ गया। तुम समाज कल्याण करो, 2 रोज 4 रोज महीना भर फिर लौट के आना, हमारे लिए कपड़ा मिलना। मगर कबीर दास जो दरबार से गए तो फिर लौट के ना आए। बरस बीत गए, बादशाह ने हुक्म दिया कि कबीर दास को दरबार में बुलाया जाए। कबीर दास फिर बादशाह के सामने लाए गए। बादशाह ने कहा, कबीरा तुम आ गए तो कहो किस किस के पाप बुने, किस किस को देखा कि बुरा है, किस किस के दिल के बिनौले निकाले। कबीरा ने कहा, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, अपने दिल के अंदर जो देखा तो मुझसे बुरा न कोई। हुजूर, मैं तो अपने दिल के बिनौले बीन रहा हूँ। कबीरा, हमारे लिए चदरिया बुनो, वैसे ही चीजें बुनो, चाहे अपनी इच्छा से बुनो या कारागार में बुनो। बुलाओ अपने संगी साथियों को, लिबास तो तुम्हें अब बुनना ही होगा कबीरा। तो कबीर दास ने कहा, हुजूर, चदरिया तो वो है झीनी तो उस ईश्वर ने बुनी कि वो आत्मा है जो हर इंसान के अंदर है। ये आत्मा जो 2 दिन की मेहमान है, फिर चोला बदल दूसरे बदन में जा अपना विश्राम। चदरिया 2 दिन को मिली है, इसे पहन पहन मैली क्यों कर दी। हुजूर, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये आज के दास्तान में आखिरी बंद पे पहुंचे, ये आखिरी टुकड़ा है जो हमने लिया है। और आज जो किताब का रस्म इजरा हुआ है श्रीमती डॉक्टर पवन जैन साहिबा का, उन्होंने इस टुकड़े पे और इस किरदार पे काफ़ी काम किया है। उन्होंने इसको लोगों के सामने दोबारा से कहें कि मुतारिफ करवाया है, उसका तारुफ करवाया है। ये आखिरी टुकड़ा आप सबकी पेशे खिदमत कि जानिए वो कुमारी, वो मंदी कुमारी, कि वो वाहिद तीर्थंकर जैन धर्म में पाई महिला तीर्थंकर, बाकी सब पुरुष और ये एक वाहिद। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर्म, ऐसा क्या कारनामा और क्या करिश्मा है
कि मल्ली कुमारी जब पहले जन्म में पुरुष थी, राजा थी, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, चलो अब हम दीक्षा लेते हैं, कि दीक्षा ली जाए, उस ईश्वर का ध्यान किया। कि उनके साथ के 6 राजाओं ने, जो उनके मित्र थे, ये तय किया कि हमने अपने जीवन में हर कार्य साथ साथ किया, सब दोस्तों ने साथ बादशाह बने, साथ ही हमने विवाह किए, साथ ही हम रण में गए, तो चलो दीक्षा भी अब साथ लेते हैं। लेकिन ये तय किया गया कि जो कार्य एक करेगा वही दूसरा, वही तीसरा और वही सब करेंगे। खातिनो हजरात, फिर हुआ यूं कि मल्ली कुमारी जो अभी पहले जन्म में राजा है, इसके दिल में आया कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं, सबसे ज्यादा परिश्रम करूं, ध्यान करूं, कि ज्ञान की प्राप्ति हो मुझे। वो ध्यान करती, मन लगाती, जीवन बीता, दूसरा जीवन जो आया, तो उस जीवन में बाकी सारे मित्र 6 पुरुष पैदा हुए, एक ये वाहिद स्त्री के रूप में, औरत के रूप में जमीन पे। उस दौर के ज्ञानियों ने जाना तो कहा कि भाई जानो, इसने मल्ली कुमारी ने धोखा दिया अपने साथियों को। तय हुआ था कि उतना परिश्रम किया जाएगा, मगर इसने ज्यादा किया। इसलिए ये भगवान का श्राप है कि ये औरत पन की जमीन पे आए। धोखा न करो, परिश्रम तय हुआ था उतना ही करो। लेकिन बात वही कि भविष्य के गर्भ में क्या है वो स्वयं ईश्वर ही जानता है। कि देखिए दास्तान वक्त से कैसे करवट लेती है और कैसे पलटती है और चलती है। कि नारी होना श्राप नहीं वरदान है। कि जहां नारी पूजा होती है वहां देवताओं का आशीर्वाद होता है। नहीं, ये बातें शास्त्रों की हैं, लेकिन मल्ली कुमारी ने धोखा दिया था अपने साथियों को, इसलिए वो औरत स्त्री पैदा हो। कि जब मल्ली कुमारी जवान होने लगी, जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तो वो अपने ध्यान में मगन रहती कि उनके पास एक बुजुर्ग साध्वी आई, सामने बैठी और उसने कहा कि दान करने वाला दानी ये सबसे महान कर्म है कि वो मोक्ष पाएगा और जन्नत में जाएगा। मल्ली कुमारी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं। दान करने वाला अगर जीव हत्या करे तो उसको स्वर्ग कैसे मिलेगा, वो स्वर्ग कैसे पाएगा। कि कर्म का उपजा तो ये है कि पहले वो खुद पे करे, वो खुद का इम्तिहान ले, वो खुद को परखे। दान बड़ा दान है, महादान तो नहीं। महादान तो अपनी आत्मा का इम्तिहान। इस बात से उस आई साध्वी को उसने कहा कि मेरी इतनी उम्र में इस बात को कहती हूँ और मल्ली इनकार करती है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसका ब्याह ऐसे राजा से करवाऊंगी जिसकी पहले ही 10-10 रानियां होंगी। और कैसे? अब तो वो साध्वी एक राजा के दरबार में पहुंची और जाके कहा, बादशाह सलामत,
आपको एक बात बताऊं, आप जान के हैरान रह जाएंगे। यहाँ निकट राज्य में एक ऐसी सुंदरी है, मालूम दो लोक से खुद अप्सरा उतर के आई है। उसका रंग दमकता है, आंखें जैसे झील, बाल जो खोल दे तो जानो घटाएं बरस पड़ी हुजूर। ऐसा रंग किसी ने न देखा, ऐसा रूप किसी ने न देखा, ऐसी चाल, ऐसा चितवन जो देखे देखता रह जाए। आप अपने विवाह का प्याम क्यों नहीं भेजते? राजा ने ये बात सुनी, बड़ा खुश हुआ, साध्वी को इनाम दिया और अपने विवाह का पैगाम मल्लिक कुमारी के लिए भेजा। ये बात होते 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 बाकी उन 6 राजाओं तक भी पहुंची जो पहले जन्म में मल्ली के मित्र थे, इस जन्म में राजा बने थे। उन तक ये बात पहुंची कि इतनी सुंदरी और पड़ोस देश का राजा उससे ब्याह कर ले और हम रह जाएं। तो उन्होंने भी अपने विवाह का पैगाम भेजा, संदेश भेजा। मगर मल्ली के बाप, उनके पिता राजा जी जानते थे कि उनकी बेटी तो साध्वी है, वो तो अपने ध्यान में मगन रहती है। मैं क्या कहूँ, तो उन्होंने इधर उधर का बहाना कर ना कर दिया। इस ना को सुन जितने भी राजा, तमाम राजाओं के दिल पे ठेस लगी। 6 के 6 राजाओं ने तय किया कि हम आक्रमण करेंगे, कि हम मल्ली कुमारी को हासिल करेंगे, उससे विवाह करेंगे। 6 के 6 राजा आए, उन्होंने नगर को, राज्य को घेर लिया। मल्ली कुमारी ने अपने राजा, पिता, बाप से कहा, आप फिक्र न करिए, 6 राजाओं के लिए 6 कक्ष बनवाए और उन कक्ष से एक झरोका खोला जहां अपनी ही जैसी हूबहू मूर्ति रखवाई। राजाओं को बुलवाया अलग अलग कक्ष में, यूं कि राजाओं को ये मालूम देता था कि सिर्फ हम आए हैं मल्ली को देखने, उससे मिलने के लिए, कि जब सही समय होगा तो मुलाकात होगी, बात से बात होगी। अभी जरा एक नजर देखिए कि राजा जो मल्ली की मूर्ति को देखते थे, तो मल्ली कुमारी ने यूं किया, उस मूर्त के गले में एक सुराख किया, वहां से रोज कुछ खाना वो डाल देती, कुछ और उसमें रख देती। जब चंद रोज बीते, राजा बेचैन हुए कि आखिर ये क्या माजरा है, हमारी मुलाकात वो क्यों नहीं होती। तो मल्ली ने राजाओं को बुलवाया, उस मूरत की गर्दन को उतारा और एक तरफ रख दिया। उससे जो सुगंध आई, कई रोज का सड़ता खाना। तो राजा, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? मल्ली ने कहा, इंसान इसी को खाता है, यही उसके पेट में सड़ता और गलता है, इसी से मांस बना, इसी से खून, इसी से ये रूप, इसी से बाल। एक रोज ये सब खत्म, खाक हो जाएंगे। फिर काहे को लड़ना, काहे को झगड़ना। मेरे मित्रों, याद करो, मैं वही तुम्हारी मित्र हूँ। ये जीवन का यही रहस्य है, एक रोज माटी हो जाना है। आओ चलो हम सब साथ चलें और दीक्षा लें कि मल्ली के साथ उन 6 राजाओं ने और कई सौ और श्रद्धालुओं ने दीक्षा ली। वो जैन इतिहास में अकेली महिला तीर्थंकर हुई। ये उनकी मेहनत और उनकी लगन थी जिससे ये फल पाया।
और जीवन क्या है, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जीवन क्या है, जीवन सिर्फ सांस के आने जाने का। कि बुनकरों ने ऐसी उम्दा कहानियां लिखी, ऐसे रची कि जो आज भी जिंदा हैं। आपको सुनने में लगेगा कि भाई बुनकर का काम तो सिर्फ कपड़ा बुनना है, लिबास तैयार करना। इसका इतना गुणगान, इतना उद्देश्य, इतनी बातें आखिर काहे की थी? तो आपसे कहते चले कि एक जाहिर है और एक छुपा। जाहिर यह है कि इंसान आपके सामने है, छुपा है वो उसकी आत्मा है। बुनकर क्या करते हैं? कपड़ा बुनते हैं और कभी उस पर तारीफ लिख देते हैं। बुनकर से हमने भी एक रोज कहा कि जिसको हर दिल कहता है, मुझको भी तरकीब सिखा यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा यार जुलाहे। तू जो बुनता है ताना, कोई धागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से जोड़ के उसमें आगे बुनने लगता है। मुझको भी तरकीब सिखा यार जुलाहे, कि तेरे बुनतर की एक भी गिरह गांठ नजर नहीं आती। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, उसकी सारी गिराहें साफ नजर आती। मुझको भी तरकीब सिखा के यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का एक बार फिर नेशनल म्यूजियम का, श्रीमती पवन जैन साहिबा का कि जिन्होंने ये कीमती कहानियां दी, डीजी साहिबा का, अगर आप ना होती तो शायद ये शाम मुमकिन ना होती। लंदन से हमारे एक साथी आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ममता दीवान साहिबा तशरीफ रखती हैं, जो थिएटर की एक बहुत बड़ी क्रिटिक है। आप तशरीफ लाए, शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आगा आपका। आपने इतनी खूबसूरती से चित्रम वस्त्रम एग्जीबिशन की टेक्सटाइल और अपने हुनर दास्तान गोई से जो कहानियां बुनी वो सच में काबिले तारीफ हैं। तो एक बार जोरदार तालियां साहिल साहब के लिए। तो आज का हमारा ये बुक रिलीज फंक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं डीजी मैम और आप सभी ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी मौजूदगी से इस फंक्शन में चार चांद लगाए। बाहर आप लोग के लिए हाई टी का इंतजाम